بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیل میں ایسی قیدی عورت جس نے بغیر ہم بستری کے 7 سال میں 14 بچے پیدا کر دیے، اور وہ ہر سال 2 بچے کیسے پیدا کرتی، یہ وجہ جان کر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ میں اس عورت کی فائل اپنے سامنے کھول کر بیٹھی تھی، جسے جیل میں ہر کوئی شبو کے نام سے پکارتا تھا۔ قیدی نمبر 248، جس کا پورا نام شبانہ لیاقت تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی فائل پڑھنی شروع کی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس کی فائل میں درج تھا وہ پڑھ کر میں اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی کہ بظاہر ایک جوان اور خوبصورت نظر آنے والی عورت بہت ہی شاطر مجرمہ تھی، جو 14 بچوں کی ماں تھی، اور جس بات نے مجھے حیران کیا تھا وہ اس کا غیر شادی شدہ ہونا تھا۔ اس کی فائل میں واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ ایک غیر شادی شدہ 14 بچوں کی ماں ہے، جس نے 7 سالوں میں 14 بچے جنم دے کر ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسی بات نے مجھے حیران ہونے پر مجبور کر دیا تھا کہ جب اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر 14 بچے کس کے تھے۔ جس جرم میں وہ سزا کاٹ رہی تھی وہ بھی انتہائی بھیانک تھی، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ یہ عورت پچھلے 9 سال سے اسی جیل میں قید تھی، اور یہ جیل صرف اور صرف عورتوں کا جیل تھا۔ یہاں سے کسی مرد کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ یہاں موجود عملہ بھی عورتوں پر ہی مشتمل تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ شبانہ عرف شبو نے یہ 14 بچے بغیر مرد کے کیسے پیدا کیے ہیں۔ یہی بات جاننے کے لیے میں نے اپنے سارے ضروری کام ترک کر کے پہلے شبانہ کی فائل کو اچھی طرح سے اسٹڈی کیا، اور پھر اسے ایک الگ کوٹھڑی میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں پوری طرح چوکنا تھی، کیونکہ اس طرح کی مجرمائیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر جاتی ہیں، اور اپنی 15 سالہ نوکری میں مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ شبو مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میڈم صاحبہ، آپ کو مجھ سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے جو آپ نے مجھے تنہائی میں بلا لیا ہے؟ میری نظر اس کے پیٹ پر تھی، جس کو دیکھ کے میں بتا سکتی تھی کہ وہ کم سے کم 7 مہینوں سے حاملہ تھی۔ شبانہ نے میری نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا تو آپ کو میرے حمل میں دلچسپی ہے۔ اس اندھیری کوٹھڑی میں اس کی ہنسی بہت بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے سختی سے کہا، مجھے زیادہ کچھ نہیں جاننا سوائے اس کے کہ جب تم شادی شدہ نہیں ہو تو پھر تم نے 14 بچے کیسے پیدا کر لیے ہیں، اور وہ بھی اس کال کوٹھڑی میں رہتے ہوئے جہاں کسی مرد کا تو دور ہوا کا بھی گزر ممکن نہیں، اور اب جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے اس کا باپ کون ہے؟ میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے شبانہ ایک دفعہ پھر کھل کر ہنسی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ کانسٹیبل نے میرے اکیلے یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے خبردار کیا تھا کہ شبو ایک نفسیاتی عورت ہے، اور جیل میں ہر کوئی اسے دور رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی علیحدہ کوٹھڑی میں بھی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پرانی جیلر کا بھی اس نے بری طرح سر پھاڑ دیا تھا، اور اس کے سر پر 10 ٹانکے آئے تھے، اور جیسا جرم کر کے وہ یہاں تک پہنچی تھی وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد جب اس کی ہنسی رکی اور کوٹھڑی میں سناٹا چھایا تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری ہنسی کے دورے مجھے میرے سوالوں سے نہیں روک سکتے۔ مجھے سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دو۔ آخر تم کس طرح حاملہ ہوئی ہو، اور تمہارے بچوں کا باپ کون ہے؟ تم کس طرح مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہو؟ آخر مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ جب میری سختی میں کوئی کمی نہ ہوئی تو شبانہ میرے قریب آئی اور میرے کان کے قریب آہستہ سے اپنا منہ رکھ کے دھیمی آواز میں کہنے لگی، سچ سچ بتاؤں، یقین کرو گی؟ اس لمحے مجھے واقعی ہی وہ کوئی پاگل عورت معلوم ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میری ریڑھ کی ہڈی بھی سنسنا اٹھی تھی، کیونکہ وہ میرے حد سے زیادہ قریب تھی، اور جسامت میں مجھ سے کہیں زیادہ لمبی چوڑی
और इसकी फाइल पे दर्ज इसके कारनामों ने मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा चौकन्ना किया हुआ था। मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए सख्ती से कहा कि हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच ही सुनना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ से मुझे नफरत है, और अगर वो मुझे सच बतानेगी तो मैं इसकी जान बख्श दूंगी, वरना इसे मेरे अताब का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकेगा। इसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बहुत आहिस्ता से कहा कि मैं कंवारी हूँ और मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। यही सच है। शबाना की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरे सामने वो हामला खड़ी थी और मेरे मुंह पर सच के नाम पर झूठ कह रही थी। मैंने एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर लगाया और कहा कि तो फिर ये बच्चा किसका है जो तुम्हारे पेट में है? बिना किसी ताल्लुक के तुम हमला हो गई हो। थप्पड़ खाते ही वो दोबारा जोर जोर से हंसने लगी, और जब इसकी हंसी कुछ कम हुई तो कहने लगी, हाँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले मैंने 14 बच्चे पैदा किए हैं। अब फिर मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, और वो भी बिना मिस्त्री के। बात मुकम्मल होते ही इस पर दोबारा हंसी का दौरा पड़ा था, और मैं जानती थी कि ये औरत इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाली नहीं है। मैं गुस्से के आलम में इसे कोठड़ी में छोड़कर बाहर निकल आई थी, जहाँ कांस्टेबल हिना मेरे इंतजार में खड़ी थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, मैडम साहिबा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके मुंह ना लगें। पता नहीं ये जादूगरनी है या फिर कोई बहुत ही मक्कार औरत। ये कैसे हमला हो जाती है कोई नहीं जानता, जबकि ये तो अपनी कोठड़ी से बाहर भी बहुत कम निकलती है, और इससे ज्यादातर बंद ही रखा जाता है, क्योंकि कब इसको दौरा पड़ जाए किसी को खबर नहीं होती। मैंने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए हिना से पूछा कि तुम यहाँ कितने अरसे से मौजूद हो? मेरी बात सुनकर इसने कुछ हिसाब लगाया और कहने लगी कि मैं 3 साल 4 महीने से यहीं मौजूद हूँ, और जब से मैंने शब्बों को इसी तरह देखा है, मेरे सामने इसने 6 बच्चे पैदा किए हैं। लेकिन ना ही वो जेल से कभी बाहर गई है और ना ही इसे कोई मिलने के लिए आता है। फिर पता नहीं कैसे वो हमला हो जाती है, कोई नहीं जानता। शबाना से होने वाली मुलाकात और हिना की बातों ने मुझे शशोपंज में मुब्तला कर दिया। कुछ तो ऐसा था जो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पसे पुश्त कोई बड़ी हकीकत पोशीदा थी, और जिसे जानने के लिए मुझे शबाना के माजी तक पहुंचना था। एक औरत होकर जो जुर्म इसने किया था वो कोई लड़की नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने शबाना के माजी को खंगालने का फैसला किया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि इसके माजी को खंगालने का कैसा भयानक सच मेरे सामने आने वाला है, और वो सच्चाई तक पहुंचकर मेरे अपने होश उड़ गए थे। मेरा नाम उज़्मा है और मैं एक जेलर थी, और मामूल के मुताबिक सुबह सुबह अपने राउंड पर थी। जो मुझे जेल में आए ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे। मेरी पोस्टिंग बस कुछ दिनों पहले हुई थी, इसलिए मैं अभी यहाँ बहुत कम लोगों से वाकिफ थी, वरना मेरी आदत थी कि मैं एक एक कैदी पर नजर रखती थी और जेल के सभी मामलात से वाकिफ रहा करती थी। मेरी नौकरी ऐसी थी कि बहुत ज्यादा मैं सख्त मजाज हो गई थी। मेरे अंदर से नरमी बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि जिन औरतों से मेरा वास्ता पड़ता था वो सब की सब बहुत शातिर और सजा याफ्ता हुआ करती थी। इनके अंदर माँ, बहन, बेटी जैसे जज्बात मैंने कभी नहीं देखे थे। कोई अपने बाप को मारकर यहाँ तक पहुंची तो कोई अपनी औलाद को बेचकर, और इसलिए मेरा दिल भी इनको लेकर बहुत सख्त था। मैं अपनी नौकरी को लेकर बहुत ही ईमानदार और फर्ज शनास थी, इसलिए अपने डिपार्टमेंट में मेरी बहुत इज्जत थी, और जहाँ कहीं कोई गड़बड़ होती मेरी पोस्टिंग वहाँ कर दी जाती। और इस दफा भी मेरी पोस्टिंग होकर फैसलाबाद की इस जेल में आई थी, जहाँ खतरनाक मुजरमाओं को सजा के तौर पर रखा जाता था। यह जेल बहुत ज्यादा बड़ा था, और आज मैं पहली दफा इस हिस्से में आई थी जहाँ उम्र कैद की मुजरमाओं को रखा गया था। इस हिस्से में ज्यादातर बड़ी उम्र की औरतें मौजूद थी, जिनके चेहरों पर सफाकियत
साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अभी तक इस जेल की मुजरमाओं की फाइलें चेक नहीं की थी, इसलिए मुझे किसी के जुर्म के बारे में कुछ ज्यादा खबर भी नहीं थी। मैं सभी पर नजर डाल रही थी कि जब भी मेरी नजर एक ऐसी मुजरमा पर पड़ी जिसका पेट हद से ज्यादा बड़ा हुआ था, और ये देखकर मैं हैरान रह गई और मैंने अपने पीछे आने वाली कांस्टेबल से पूछा कि इस औरत को क्या हुआ है, तो इसने बताया कि ये उम्मीद से है। इतना तो मैं भी जान गई थी कि वो हामला है, लेकिन इस हालत में वो जेल के इस हिस्से में क्यों मौजूद है, ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। वो कोई 35 साल की खूबसूरत और हसीन औरत थी, जिसके चेहरे पर जख्म के निशानात बता रहे थे कि वो कोई बड़ा गुनाह करके यहाँ तक पहुंची है, जिसकी निशान आज भी इसके चेहरे पर वाज़ह हैं। अमूमन मैं पहली ही नज़र में मुजरमों को अच्छी तरह जान लिया करती थी, लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे पहली नज़र में समझ नहीं आते थे, और इस औरत का चेहरा भी ऐसा ही था। मुझे लगा कि शायद वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई है। यही सोचकर मैंने इससे पूछा कि तुम्हें यहाँ कितने रोज हो गए हैं और कौन सा जुर्म करके तुम यहाँ पहुंची हो। कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लेती। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसी और कहने लगी कि मैं तो पिछले 6 साल से यहाँ मौजूद हूँ। अब तो मुझे अपना जुर्म भी याद नहीं रहा। इस औरत की बात सुनकर मैं दंग रह गई और कांस्टेबल से कहा कि क्या ये सच कह रही है? अगर ये 6 साल से यहाँ है तो फिर ये बच्चा किसका है? क्योंकि ये तो औरतों की जेल है और बगैर मर्द के ये कैसे हमला हो सकती है। मेरे सवाल के जवाब में कांस्टेबल ने कुछ भी ना कहा और वो मेरे पीछे ऐसे खामोश खड़ी रही जैसे इसे खुद भी इस बात की खबर ना हो। इससे पहले कि मैं इस औरत से मजीद कोई सवाल जवाब करती, मुझे बताया गया था कि मेरे दफ्तर में कोई मुलाकाती आया है। ये सुनकर मैं फौरन अपने दफ्तर में लौट आई। कुछ सरकारी लोग मुलाकात की गर्ज से आए हुए थे और मैं इनके साथ ऐसे मसरूफ हुई कि शाम के वक्त ही फारिग हुई और फिर मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई और मैं घर लौट आई। वो औरत, इसका हमल मेरे जहन से पूरी तरह निकल चुका था क्योंकि मेरे ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा था। मेरा ट्रांसफ़र इस जेल में इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था। पुरानी जेलर ने कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक रखा हुआ था और इसी वजह से आए दिन अदारे को खबर में बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। वो वाकई यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ उल्ट पुल्ट था और कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। यहाँ तक कि कैदियों की मुनासिब खुराक भी इन्हें नहीं मिल रही थी और ना ही इनके घर वालों से इन्हें मलवाने का कोई ख़ास इंतज़ाम था। कैदियों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। एक एक जेल में 12-12 औरतें बंद थी। मेरी पोस्टिंग को 15 दिन हो गए थे और ये 15 दिन मैंने इस कदर मसरूफ गुजारे थे कि मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और आज भी मैं इस कदर थक गई थी कि मेरे जहन से निकल ही गया था कि आज मेरे इकलौते बेटे की सालगिरह है और हमें घर लौटी तो मेरा बेटा मेरा इंतजार में बैठा था। इसके चेहरे पर नाराजगी के तासुरात मौजूद थे, इसीलिए मैंने इसे प्यार से गोद में उठाया और सॉरी कह के कि इतनी लेट हो गई हूँ। मेरी सास, शौहर और बेटा अच्छी तरह मेरी नौकरी से वाकिफ थे, इसलिए कोई भी ज्यादा देर मुझसे खफा नहीं रहता था। मेरा बेटा भी जल्दी मान गया और हमने बहुत अच्छी तरह इसकी सालगिरह मनाई। मेरा बेटा हादी मेरा इकलौता बेटा था जो बहुत ही मन्नतों मरादों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए इसमें मेरी जान बसती थी। मैं अपनी नौकरी में कितनी भी मसरूफ क्यों ना हो, हादी के लिए हमेशा वक्त निकाल लिया करती थी। आज भी बहुत ज़्यादा थके हुए होने के बावजूद मैंने बहुत शानदार तरीके से इसकी सालगिरह मनाई थी। रात को थकी हारी जब मैं सोने के लिए लेटी तो अचानक ही मेरे जहन में इस औरत का चेहरा चला आया।
जिसे मैं सुबह सुबह मिलकर आई थी। मैं इसी को सोच रही थी कि मेरे शौहर अबाद कहने लगे कि क्या बात है, सारी रात इस पहर भी आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। अबाद की बात पर मैं मुस्कुरा उठी। ये सच था कि मैं इन्हें बहुत कम वक्त देती थी और वो बहुत अच्छी तरह मेरे काम की नौयत को समझते थे। अबाद कहने लगे कि इतने सालों में हम सिर्फ एक बेटे के माँ बाप हैं। मुझे लगता है कि हमारी और भी बच्चे होने चाहिए। अबाद की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में कैदी नंबर 248 शुबाना लियाकत चल रही थी। इसलिए मैंने छूटते ही अबाद से पूछा कि कोई औरत बगैर मर्द के भी हमला हो सकती है। मेरी बात सुनकर अबाद चौंक गए और कहने लगे कि नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि अकेली औरत हमला हो जाए। इंसान तो क्या, जानवरों को भी औलाद के लिए अपने साथी की जरूरत होती है, लेकिन तुम इस वक्त ये सवाल कर रही हो। मैंने मुस्कुरा कर बात टाल दी। मैं इबाद को अपनी जेल से मुतालिक ज्यादा बातें नहीं बताया करती थी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी जाती जिंदगी और काम, मेरी जिंदगी को अलग अलग रखती थी। कुछ ही देर में ये इबाद की बाहों में मुझे सुकून आ गया था और मैं सारे दिन की थकन और शुबाना को भुलाकर अबाद के साथ खूबसूरत लम्हात गुजारने लगी थी। हादी मेरा और अबाद का इकलौता बेटा था, जिसे पैदा करने के लिए मैंने बहुत जतन किए थे। हमल था कि ठहरता ही नहीं था। पता नहीं कितने इलाज और कितनी दुआओं के बाद हादी मेरी गोद में आया था और एक शब्बो थी जो बगैर मर्द के ही बच्चे पैदा किए जा रही थी। अगली सुबह उठते ही मैंने इस केस पे काम करना शुरू कर दिया था। हमें इतनी खामोशी से जेल के अंदर एक कैदी को किसी गलत हरकत में मुलव्वस नहीं देख सकती थी। मुझे यकीन था कि शुबाना सबकी नज़रों में धूल झोंक कर किसी गैर मर्दों के साथ ताल्लुक बनाती है, और मुझे यही राज जानना था कि आखिर वो किस तरह इतने लोगों को चकमा दे सकती है। इससे पहले मुझे इसका मादी टटोलना था। वो एक भयानक जुर्म की सजा काट रही थी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज से 10 साल पहले इसने अपने बाप को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया था और इन टुकड़ों से सालन पकाकर मोहल्ले वालों को बांट दिया था। कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी और इस तरह शुबाना गिरफ्तार हुई और इसने खुद अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल किया था कि इसने अपने 60 साला बाप को पहले नींद की गोलियां खिलाई थी और इसके बाद बड़ी बेदर्दी से आरी के जरिए टुकड़ों में तब्दील किया था। कोई बेटी अपने ही सगे बाप के साथ कैसे इस तरह कर सकती है, यही जानने के लिए इस मोहल्ले तक मैं पहुंच गई जहां शुबाना रहाइश पजीर थी, और वहां जाकर मालूमात हासिल करने में जो कुछ पता चला इसने मुझे चौंका कर रख दिया। शुबाना का बाप एक शराबी आदमी था और हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था, और इसी नशे में वो अपनी बीवी यानी शुबाना की माँ को मारने से भी गुरेज नहीं करता था, और इसी के जुल्म सितम से तंग आकर शुबाना की माँ ने खुदकुशी कर ली थी। इस वक्त शुबाना सिर्फ 15 साल की थी। शुबाना की माँ खुद तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन शुबाना को इसके बाप के रहमो करम पर छोड़ गई। शुबाना के बाप ने अपनी जवान 15 साल की बेटी को अपने नशे की भेंट चढ़ा दिया, और जब भी इसके पास नशे के पैसे ना होते तो वो शुबाना को भीख मांगने पर मजबूर कर देता, और जब शुबाना ने इस अमल के लिए इनकार किया तो फिर मोहल्ले वालों ने देखा कि शुबाना के घर रंग बिरंगे मर्द आने लगे। वो मर्द क्यों आते थे और इनका शुबाना या इसके बाप से क्या ताल्लुक था, ये कोई नहीं जानता था। और फिर एक दिन जब शुबाना ने सारे मोहल्ले को कोरमा पकाकर तकसीम किया तो कुछ मोहल्ले वालों को शक हो गया कि ये गोश्त इंसानी गोश्त है, और इसीलिए पुलिस वालों को इत्तला की गई और पता चला कि शुबाना ने तो अपने बाप को ही आरी से काट कर इसके गोश्त का कोरमा बनाकर बांट दिया है। इसी रोज वो गिरफ्तार हो गई और इसने इस बात का एतराफ भी किया, और अदालत इसे उम्र कैद की सजा कर गई। कोई नहीं जानता था कि शुबाना ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था, और इन मर्दों का शुबाना के इसके बाप से क्या लेना देना था।
शबाना ने कैसे अपने बाप को काटा था। एक 16-17 साल की लड़की कैसे सफाकी की इंतहा को छू गई थी। ना ही शबाना का कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई जानने वाला। इसीलिए किसी मोहल्ले वाले को इनकी खबर ना हुई कि शबाना अब कहाँ है, किस जेल में है और इसे क्या सजा हुई है। शबाना का माजी भी इतना ही उलझा हुआ था जितना कि इसका हाल, और अब एक वही थी जो मुझे हर बात तफसील से और सच बता सकती थी। लेकिन इसकी चुभती हुई हंसी मेरे कानों के पर्दों को फाड़ने लगती थी। मैं सारी मालूमात हासिल करके जब जेल पहुंची तो मुझे पता चला कि शबाना की तबीयत ठीक नहीं है। इसके चेकअप के लिए जेल की डॉक्टर आई हुई थी और मैं भी वहीं पहुंच गई। मैंने बातों बातों में इस डॉक्टर से पूछा कि शबाना के बच्चों की डिलीवरी किसने की है, तो इसने कहा कि वो यहाँ की डॉक्टर है और इसी ने शबाना के हर बच्चे को पैदा करवाया है। शबाना के पास हमेशा जुड़वा और सेहतमंद बच्चे पैदा होते थे। मैंने डॉक्टर से पूछा, तो फिर शबाना के बच्चे कहाँ हैं? क्या इन्हें सरकारी इदारे में भेज दिया गया है? मेरी बात सुनकर इस डॉक्टर ने ला इल्मी का इजहार किया और कहने लगी कि इसे कुछ इल्म नहीं है। मैंने पुरानी जेलर से भी शबाना के हवाले से बात करने के लिए राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेरा इससे राब्ता नहीं हो सका था। इसे कहीं दूर किसी छोटे से इलाके में ट्रांसफ़र करके भेज दिया गया था। अब मुझे शबाना की तबीयत के ठीक होने का इंतज़ार करना था, क्योंकि इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। काल कोठड़ी के घुटन ज़्यादा माहौल में एक हामला औरत का रहना बहुत ही मुश्किल था, और शबाना तो पिछले 7 सालों से अमल से गुजर रही थी। तकरीबन 2 दिन बाद शबाना की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया, तो मैंने इसे अपने ऑफिस में बुलवाया और इसे पहले जूस पिलाया था कि इसकी तबीयत मजीद बेहतर हो जाए। शबाना ने खामोशी से जूस पी लिया, तो मैंने इसे कहा कि मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ और मैं इसे यहाँ से आज़ादी दिलवा सकती हूँ। अगर वो मुझे अपने बारे में हर बात सच बता दे तो मैं इसकी सज़ा में बहुत हद तक कमी भी करवा सकती हूँ। शबाना ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी कि वो जेल की 4 दीवारी से बाहर जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि बाहर की दुनिया में इसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। मैंने मुस्कुराकर शबाना से कहा कि इसके बच्चे इसके मुंतज़िर होंगे, और जिन बच्चों को वो जन्म देने वाली है, इन बच्चों के साथ भी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है, और इन बच्चों का कोई ना कोई बाप भी होगा जो इसे एक बेहतर ज़िंदगी देगा, जो इसे जेल में हासिल नहीं हो सकती। शबाना ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? मेरे बच्चों का कोई बाप नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं। ना ही मुझे कुछ इल्म है कि मैं हामला किस तरह होती हूँ। बस मुझे इतनी खबर है कि मेरे बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया जाता है और मैं अपने हर बच्चे की याद में तड़पती रहती हूँ। आज शबाना पहले की तरह हंस नहीं रही थी, बल्कि शायद बीमारी के असर ने इसे दुखी कर दिया था। इसकी बात पर मैं वाकई हैरान हो गई थी, क्योंकि इसका लहजा मुझे इसकी बात पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने जब इससे दोबारा पूछा कि क्या तुम सच में नहीं जानती हो कि तुम हामला कैसे होती हो, तो इसने इनकार में सर हिला दिया। इसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे और वो अपने माजी की दास्तान मुझे सुना रही थी, जिसे सुनकर मेरे भी आंसू बहने लगे थे। मैं लाख सख्त मजाज सही, लेकिन इसकी दास्तान ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। शबाना ने मुझे बताया कि इसके बाप ने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए इसे फरोख्त करना शुरू कर दिया था, और वो अपने घर की 4 दीवारी में हर रोज पामाल होने लगी थी। और जब जुल्म हद से बढ़ा तो इसने तंग आकर अपने बाप को बुरी तरह कत्ल कर दिया। इसे अपने इस गुनाह पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि इसने अपने बाप के जिस्म के जितने टुकड़े किए थे, इससे कहीं ज्यादा जख्म इसके बाप की वजह से इसे मिले थे। वो सजा काटने के लिए
जेल चली आई, लेकिन यहाँ आने के 6 महीने बाद इसे पता चला कि वो तो हामला है। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये हमल इसे जेल में आने के बाद ठहरा है, और ये बच्चा किसका था, इसके शक्म में कब आया, इसे मालूम नहीं था। और फिर इसने 14 बच्चों को इसी तरह जन्म दिया, और एक दफा फिर अब वो हामला थी। इसकी कहानी सुनकर मुझे इतना तो समझ आ गया था कि वो एक बेकसूर लड़की है, लेकिन फिर कसूर किसका था? और यही बात जानने के लिए जब मैंने जेल में तफ्तीश शुरू की और अपने ही मुलाजमीन से तफ्तीश का आगाज किया, तो एक ऐसा भयानक सच मेरे सामने आया कि मेरी जान निकल गई। इससे पहले जो जेलर यहाँ मौजूद थी, वो यहाँ की डॉक्टर के साथ मिली हुई थी, और हर महीने कैदियों का जो चेकअप होता था, इसी दौरान इसने शब्बों के अंदर किसी मर्द के जरासीम मुंतकिल किए थे, और इससे बच्चा पैदा करवा कर इन्हें इसे फरोख्त कर दिया जाता था। वो जेलर इसी तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस थी और अच्छी तरह जानती थी कि कौन कौन से कैदियों से मुलाकात के लिए इनके घर वाले नहीं आते थे, और इन्हीं कैदी औरतों को अपने मकसद के लिए वो इस्तेमाल करती थी और गलत काम करके पैसा बनाती थी। शब्बो वाकई मजलूम थी, और इसने किसी के साथ हम बिस्तरी नहीं की थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कैसे इतने बच्चों की मां बन गई। मैंने इस जेलर के खिलाफ कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी थी और शब्बों की सजा को भी कम करवा दिया था। अब कुछ दिन बाकी हैं और फिर इसके बाद शब्बो आज़ाद हो जाएगी। मैंने इसे यकीन दिलाया है कि मैं इसे अपने घर रख लूँगी और इसे एक अच्छी ज़िंदगी दूँगी। वो मेरे घर रहकर मेरे लिए इज्जत के साथ काम कर सकती है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई थी, और अब जो बच्चे पैदा होने वाले थे, इन पर भी शब्बों का ही हक था। मैं अब इन बच्चों से जुदा नहीं कर सकती थी। क्या आप लोगों को लगता है कि मुझसे पहले वाली जेलर को इसके इस भयानक जुर्म पर कोई सजा होगी, या फिर वो अपनी वर्दी की वजह से कानून की गिरफ्त से बच जाएगी? क्या आप लोगों को जेल की जिंदगी के भयानक हक़ाइक़ का कुछ इल्म है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।